हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड भी किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी हैव हियर दैट इज व्हाट? ओम्स लॉ। चलिए एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की थी और मैंने आपसे बताया था व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है जब हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने की। तो वो सिंबल्स क्या हैं? बेसिक सिंबल्स लाइक सेल हैविंग वन लॉन्ग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अनदर इज शॉर्ट। तो जो लॉन्ग है वो प्लस होगा एंड जो शॉर्ट है दैट विल बी निगेटिव टर्मिनल। और हमने डिस्कस भी किया था कि जब हम सेल्स को कंबाइन करते हैं, ग्रुप वाइज बनाते हैं, कई सारे सेल्स का संयोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, देन व्हाट वी गेट बैटरी हियर। As we can see, the group of cells is known as battery. Ammeter. What is an ammeter? Ammeter is a component which is used to measure the current. जो करंट को मेज़र करता है। अगर आपको याद हो, करंट के डिफिनेशन में हमने बताया था, जब हमने डिस्कस किया था करंट की एसआई यूनिट के बारे में, तो एसआई यूनिट वाज एम्पियर। सो एम्पियर के ही नाम से बना है अमीटर। Voltmeter, as we can see, voltmeter consists of volt means voltage measurement। तो voltmeter क्या हो गया? It's a component which is going to measure the voltage or the potential difference across a terminal। Resistance, अभी हम यहाँ पे आज डिटेल में रेजिस्टेंस की ही बात करने वाले हैं। बाय द वे, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। एंड रियोस्टेट और वी कैन से द वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब हम सर्किट्स इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम सर्किट्स ड्रॉ करेंगे, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि हाउ वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट। सो वी यूज rheostat in that situation whenever we have to vary the resistance of the circuit। Now the switches open and close as we have the switches in our at home, है ना। डिफरेंट अप्लाइंसेस वी ऑपरेट विद द स्विचेस। तो स्विच ऑन करते हैं तो लाइट मूव कर जाती है, लाइट करंट फ्लो कर जाती है, जिससे आपका इक्विपमेंट वर्कआउट करता है। जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो करंट फ्लो बंद हो जाता है, दैट्स वाई तो आपका अप्लाइंसेस काम करना बंद कर देते हैं। These are the basic symbols what we require for the discussion, for the designing of the circuit, whenever we are going to design, whenever we are going to draw any circuit diagram. So we have to use these symbolic representation, like, okay, so right now we are going to deal with, today we will discuss about Ohm's law। It is a one of the फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। डेफिनेटली 1 or 2 मार्क फ्रॉम ओम्स लॉ इज ऑलवेज देयर in the competitive examination if you are appearing for medical examination, that is NEET, or if you are appearing for engineering, that is IITs, or national level, that is CBSE, AIEEE, what we can say right now both are merged। They are conducted by the CBSE basically, and regional universities have their own pattern of papers as an entrance examination whenever you are going for different type of courses like BTech, like P architecture। So whenever there is needed, definitely this topic carries 1 or 2 mark question। So we will discuss today about the Ohm's law। What happens if we remind a thing what we have learnt in a material? The current was flowing because of the free charge carriers, and when it was flowing, when we have applied some potential difference, because of the potential difference we have seen the electrons are directed to move towards the positive terminal of the source, and this speed or this velocity by which the electrons were moving towards the positive terminal of the source was known as drift velocity, and in the opposite direction of the flow of electron, that is the current। Or we have concluded in the last lecture that current starts moving from positive terminal
and it will move from plus to minus terminal of the source. Now coming to here, according to Ohm's law, हम इसको आज डिस्कस करेंगे अच्छे से. I have written the statement, so you can note down the statement in your copy. According to Ohm's law, the current flow through any conductor is directly proportional to the potential difference across its N terminal under the physical conditions remain constant or remain same. That means what are the physical conditions we are talking about? Physical conditions like temperature, like volume, humidity, like these are the physical parameters in which we are working. Suppose we have taken this circuit. This circuit consists of a voltage source, an ammeter, a voltmeter, a bulb. Bulb is basically a load where the energy has to be utilized. So in this case, whenever we talk about the Ohm's law, so what is saying, if the physical conditions remain same, that means physical conditions are not going to vary. It is pre-assumed that the temperature will stay constant, the volume will stay constant, the pressure will stay constant. अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, फिजिकल कंडीशंस आपकी कांस्टेंट हैं, तो ऐसे केस में किसी भी कंडक्टर में बहने वाली धारा, अगर मैं हिंदी में बात करूं, किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा उस कंडक्टर के दोनों एंड टर्मिनल के बीच के विभव अंतर के या विभवांतर के समानुपाती होती है. दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग across a conductor is proportional to the potential difference between the end terminal of the conductor. अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इस चीज़ को मैं दूर कर देता हूँ. आपको कन्फ्यूज़न क्या होगा? when we see the NCERT book or when we see our book at our standard, so वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि the voltage is या the potential is proportional to the current. देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. आपके लेवल पे वो डेफिनेशन भी करेक्ट है और ये डेफिनेशन भी परफेक्ट है, बट केवल ख्याल ये रखना है कि जब आप क्लास 9th के लिए ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वही डेफिनेशन क्लास 9th 10th में आप पढ़ रहे हैं, तब आपके लिए वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों सेम है. वैन एवर वी डिस्कस द ओम्स लॉ इन क्लास 12 और हायर एजुकेशन, तब हमारी डेफिनेशन यही रह जाती है. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तो शायद आपको मेरा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे. बेसिकली होता क्या है, इफ़ वी ड्रॉ द डायग्राम, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शो करूँगा, आपके घर में आपको दिखता होगा, हम उसी एग्जांपल के थ्रू चलेंगे. बेसिकली लेट अस सी, आप सभी के घर में आपके छत पर टैंक होगा, पानी की टंकी होगी जिसे आप बेसिकली कहते हैं. दिस इज कॉमनली नोन एज अ वाटर टैंक व्हाट वी हैव एट आवर रूफ. जब भी हम टैप से पानी नीचे लेते हैं ग्राउंड पर, यहाँ से पाइप्स आई होती हैं, इस पाइप के थ्रू हम एक बकेट में पानी फिल करते हैं. तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हाइट पर. ये जो हाइट हमने ले रखी है टैंक की ग्राउंड से, इस हाइट पर डिपेंड करता है कि टैप से बहने वाला वाटर, उसका स्पीड क्या होगा, कितनी तेज़ी से वो नीचे बकेट में फिल हो रहा होगा. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाइट. अगर मैं आपको दो एग्जांपल सेट करूं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे. इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, रिमूव करता हूँ. अभी डेफिनेशन को मैं अब हम देख चुके हैं. देखिए, एक एग्जांपल है आपके पास, पहला केस है आपके पास, टैंक आपका यहाँ पर है किसी एक सरफेस पर, और आपके पास और जो आपका टैब है, जहाँ बकेट रखा है, ये जो कनेक्शन है आपका पाइप का, ये इस हाइट से है. ठीक है, नंबर फर्स्ट केस. नंबर 2, अभी आपने टैंक यहाँ रख लिया है,
और अब आपका टैप अभी भी यहीं पर है फिलहाल, उसी हाइट पर। बकेट यहाँ पर है आपके पास, लाइक दिस वन। अब हाइट आपकी ये हो गई। नाउ इफ वी सी बोथ आर एट द सेम लेवल, यहाँ की हाइट ये है वाटर फ्लो की, यहाँ की हाइट ये है वाटर फ्लो की h डैश। सो देयर इज अ डिफरेंस इन हाइट। तो अगर हाइट यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पर पानी जो गिर रहा है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, पानी गिरने की स्पीड ये ज़्यादा होगी। यहाँ की स्पीड क्या होगी, ये कम हो जाएगी, इस वाले की स्पीड क्या होगी, कम होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइट। In the second case, the difference of the height is more as compared to the first case, so that is why the speed is high in this one. Exactly in the same manner, when we discuss about the Ohm's law, suppose this is a conductor wire, this is a terminal A and this is a terminal B. So इनके बीच का जो potential difference होगा, that is suppose VAB, तो ये जितना ज़्यादा होगा इसमें बहने वाली धारा उतनी ही ज़्यादा होगी। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मोर, द करंट विल बी मोर। अब आप इस चीज़ को व्यवहारिक लैंग्वेज में समझें, आपके घर के लैंग्वेज में समझें। आपने गर्मियों में कभी कभी देखा होगा, बरसात में अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है और हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। वाई? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वोल्टेज बढ़ा तो क्या हो गया, करंट बढ़ गई, और करंट बढ़ गई तो हमारा बल्ब फ्यूज़ कर गया। कभी कभी वोल्टेज कम होता है, बहुत लो हो जाता है, तो बल्ब बहुत धीमे चलता है, पंखा बिल्कुल रेंग रहा होता है, फ्रिज काम नहीं कर रही होती। वाई? बिकॉज ऑफ द वोल्टेज वॉज लेस, द करंट वॉज लेस। सो डेफिनेटली आपको मैं बता दूँ, ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए कि टिल क्लास 10th आप डिफिनेशंस, चाहे आप V इज प्रोपोर्शनल टू I के हैं या I इज प्रोपोर्शनल टू V के हैं, बोथ आर करेक्ट। बट व्हेन वी डिस्कस द ओम्स लॉ इन डेप्थ, जब हम डेप्थ में बात करते हैं, ओम्स लॉ के डिटेल में बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ओनली वन डेफिनेशन इज करेक्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुक के हिसाब से चल रहे हैं, वो भी करेक्ट है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल इंश्योर हो जाएं, अगर आप ये डिफिनेशन भी लिख कर आते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सो द करंट वाज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंडिटर्मिनल under the physical conditions remain same. That means I is proportional to V, or we can write V by I is equal to constant. इस constant को हमने क्या नाम दे दिया, इस constant का नाम दे दिया कैपिटल R. Now R is known as resistance. R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। नाउ इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल को किस में मापते हैं, वोल्ट में, करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। सो वोल्ट पर एम्पियर इज इट्स यूनिट, और इन जनरल इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। व्हाट वी से, ओम। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बिकम ओम, एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ओम इज लाइक दिस वन। क्या बनाएंगे ओम, कैसे बनाएंगे, ओम कुछ नहीं बनाना, ये ओम बनाना है, ठीक है। देख लीजिए आप थोड़ा सा, बस दिस इज योर ओम। ओके, अब हमने यहाँ पे बात कर रहा है आई वी कर्व, मीन्स करंट वोल्टेज कर्व। सर्किट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, हमेशा याद रखिए, चूँकि करंट फ्लो करती है तो करंट को मेज़र करने के लिए हम एम्पियर मीटर या अमीटर लगाएंगे, जो कि सीरीज़ में होगा। तो सोर्स के साथ सीरीज़ में हमने अमीटर लगा दिया, और जिस लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये सीरीज़ में अमीटर क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाते हैं, हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम आप आगे आते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आई। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सर व्हाट इज रेजिस्टेंस। हमने ये तो बता दिया कि इट इज़ अ कांस्टेंट, बट डिफाइन कैसे करेंगे रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट का अपोज करे। जैसे हमारे बॉडी के एक रेजिस्टिव पावर है, यू नो,
all of the human beings, all of the animals, they have a resistive power against the infections. जो भी बाहरी इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अभी लाइक वी सी recent in recent news what we came to know daily, we are looking, that is coronavirus, that is COVID-19. So why we are not suffering from the coronavirus? Because of we have an immunity system which opposes the infection due to this coronavirus. In fact, coronavirus is well known today because of its infections are there, but बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके इन्फेक्शन हमारे बॉडी पर असर नहीं डाल पाते हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही कंडक्टर मटेरियल के इम्यून सिस्टम को बोलते हैं रेजिस्टेंस. यहाँ पर भी करंट फ्लो होना चाहती है, लेकिन करंट का फ्लो अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उस मैटर की, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस. So how can we define the term resistance? It's a property of conductor or it's a property of material which resist the flow of current. जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे, रोके, जो करंट के फ्लो को ना होने दे, उसे क्या बोलते हैं आप? रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं. ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current flowing in a conductor is proportional to the potential difference between its terminal if the physical conditions are same. ठीक है, now I is proportional to V, V upon I is equal to constant, V upon I is equal to R. अब ये जो constant है इसी को हमने R का नाम दे दिया. now R becomes a constant and it is known as resistance. इसका नामकरण किया तो ये resistance हो गया. now इसकी यूनिट है ओम, क्योंकि ओम साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है. इसके बाद हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बात करी कि व्हाट इज रेजिस्टेंस. सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. अब ये आई वी कर्व क्या है? आई वी ग्राफ है, बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है. तो जितने भी कंडक्टर मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, हमेशा आप कभी भी उनका ग्राफ देखेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. It will be always a straight line. So we have to remind this thing. If we are talking about the conductor, the VI curve will be a straight line. और अगर वो एक कंडक्टर नहीं है, लाइक सेमी कंडक्टर है, तो वो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा. जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 9th में, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता. एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम ओहमिक सब्सटेंस की बात करते हैं या कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. लेकिन जब हम सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है. मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ, कभी आपके काम आएगा. जब हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अब ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसको जानने के लिए हम आप क्या करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर्स में आएंगे और हम वहाँ पर देखेंगे. तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अभी भी मुझे आप सभी से शिकायत है, हम डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाते हैं, वीडियो रिप्रेजेंट करते हैं, शूट करते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें. बट माय फ्रेंड्स, वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. सो प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम व्हाट यू कैन in your colleagues, in your friend circles, in your relatives, so that we get inspired from you all and we can do our best to serve you better. So have a great day. Thank you very much.